So तमगा-ए-इम्तियाज। ओहो अच्छा, जो लोग काम करते हैं ना वो काम इसलिए करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उससे किसको फ़ायदा होता है, उससे खुशी क्या होती है। जब मैं लेके वहाँ से आ रही थी एंड दे इंसिस्टेड कि आप जहाज़ पे पहने रहें, मैंने they made me wear it on the plane from Islamabad to Karachi and they kept telling everyone, you know, she got Tamgha-e-Imtiaz. It was so embarrassing, I can't tell you. अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें तो उससे जो फ़ायदा होगा, nobody could understand कि एंटरप्रेन्योर्स में, यंग पीपल में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर हम गए, पहुँचे सैमसंग के पास, अनदर फॉरेन कंपनी, राइट। उनसे हमने कहा कि हम ये कर रहे हैं, गूगल ने, उनको भी समझ में नहीं आया था वैसे बाय द वे, मगर उनको ये समझ में आया था कि गूगल अगर कर रहा है तो कोई फ़ायदा है इसमें। तो उन्होंने हमें बैलेंस वो पैसे दे दिए। So a group of Pasha representatives came to me and said, आप तो हर वक्त यही कंप्लेन करती हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तो why don't you take over as president of the association and make the changes that you think should be made? Have you like felt it कि यार लोगों के जहनों में ये मिसकंसेप्शन है मेरे बारे में या मेरी पर्सनालिटी के बारे में? हाँ, लोग डरते हैं मुझसे मिलने के पहले, और कुछ को मैं डराती भी हूँ। Tell me what annoys you the most? I think people who lie. उस ज़माने में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, मुझे याद बहुत आती थी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। तुम जा रहे थे तो कुछ बच्चे जा रहे थे गाड़ी में अपनी। I was very small, I think 6 or 7 years old. So I asked my father, I said, how come we don't have a car? Why are we walking down and these people are going in such a nice car? So at that time he turned around to me and he said, beta, don't look at people who have more than you. Always look at those who have less than you. Yes. And that stuck with me. It should not make you feel better that someone else is miserable. And should not make you feel miserable कि किसी और के पास कोई चीज़ है. What so are do you get questions like about marriage? Yeah. So sometimes people do ask, कि आपने शादी क्यों नहीं? अभी क्या पता, maybe next year I might meet someone that I want to get married to. आप वेस्ट में नहीं सुनते हैं 90-year-old है, 95-year-old है शादी के लिए। You have other things to do in life. पढ़ना भी है, काम भी करना है, दोस्तियाँ भी करनी है, ट्रैवल भी करना है, गैजेट्स भी खरीदने, ये सब कुछ मैंने किया है। शादी नहीं की because I just never connected with a person that I felt कि मैं ज़िंदगी भर उसके साथ गुजार सकूँ। And for a man to admit that, it takes a confident man to admit to that as well. Why we don't have women entrepreneurs or women leadership or female CEOs, let's say? Why? Like there must be some reasons, and they can share their side of the coin also with these people so that they can, you know, work on themselves and improve and fill those gaps. अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम रनिंग आफ्टर यू सिंस आई थिंक 5 months, past 5 months. I'm so sorry. There was so much travel and so many activities that I was a part of. Otherwise, I try and make it easier. I'm not a, you know. But it's okay यार. Yeah. Also you have this aura. When I entered, I was like, ये तो बहुत खतरनाक होने वाली है. Looks like rude already. A lot of confident people, you know, throw that aura, I think. But now I'm like very comfortable, happy with you. No, I'm not rude unless I'm angry. Then I can be for a couple of minutes. Only if somebody destroys a painting then. Exactly. That too. Okay. So we'll begin with your journey. I know you have a lot of people have covered your story and your internships, your jobs and everything. But I would like to go a little behind that story. बचपन में क्या बनना चाहते थे? क्या सोचा बनने का? क्या दिमाग में था कि ये मुझे करना है, या कुछ भी नहीं सोचा? देखिए, मैं I wasn't one of those people जो सोचते थे कि हम जब बड़े होंगे तो ये करेंगे या ये बनेंगे। I like to enjoy the moment. और मेरा चाइल्डहुड, मुझे लगता है कि 3 भाई हैं, 1 बहन है, तो we just enjoyed life. हालांकि हम में से कुछ लोग थे जिन्होंने तय किया हुआ था कि ये करना है ज़िंदगी से। Like my sister used to say, when I grow up, and she's 6 years younger than me, she used to say, when I grow up, I want to be an air hostess. She never became an air hostess, but that's what she thought when she was little. मैंने कभी नहीं सोचा, उस वक्त मैंने नहीं सोचा। मुझे शौक़ थे कुछ, जैसे राइटिंग का बहुत शौक़ था, तो आई न्यू दैट व्हाटएवर आई डिड उसमें राइटिंग ज़रूर शामिल होगी, कम्युनिकेशन ज़रूर शामिल होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बड़ी होंगी तो फलां चीज़ बनूंगी, किताबें लिखूंगी, ऐसा भी बिकॉज़ यू यूज्ड टू राइट। नहीं, कभी इस लेवल तक मैंने नहीं सोचा। अब लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में किताब लिखें, तो मैं सोचती हूँ कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जो लोग किताब लिखते हैं उसमें बहुत वक्त भी लगता है, उसमें दे हैव टू बी टोटली कमिटेड एंड ऑल्सो दे नीड टू हैव अ टैलेंट
for writing, you know, large things, not just an article or a blog piece or something like that. तो शायद शुरू करूँ, मगर अभी तो फिलहाल कोई ऐसा. You're still enjoying every I'm moment enjoying of what I'm life. doing, yeah. So फिर how did you end up being at this position? Little by little. So I started, I grew up in Hong Kong. कराची में पैदा हुई थी. मेरे वालिद बैंकर थे और वो मूव हो गए हांगकांग, तो दैट्स वेयर वी ग्रू अप. तो आई थिंक कि एक एडवांटेज हांगकांग में रहने का ये हुआ कि कभी ये नहीं था कि अगर आप लड़की हैं तो आप ये कर सकती हैं, लड़के हैं तो ये कर सकते हैं, या ये लिमिटेड करियर ऑप्शंस नहीं थे. वहाँ जो किसी काबिल होता था वो चीज़ करता था. तो आई ग्रू अप विद दैट कॉन्फिडेंस. और जाहिर है अपने पेरेंट्स को भी मुझे क्रेडिट देनी होगी. They used to tell us, you know, you can be whatever you want to be as long as you put in the hard work. और हार्ड वर्क मेरे ख्याल में मेरे सिबलिंग्स ने, मैंने, हम सब ने बहुत मेहनत की है जो भी चीज़ बनने के लिए. तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. तो पहली अपॉर्चुनिटी कैसे स्ट्राइक की? तो मैं फ्रीलांस राइटिंग करती थी. जब मैं स्टूडेंट थी जब से ही मैंने शुरू कर दिया था न्यूज़पेपर्स के लिए. और पीपल लाइक्ड व्हाट आई रोट. उसके बाद मैं कराची आई थी. मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री अपनी सेंट जोसेफ्स कॉलेज से अंडरग्रेड किया. उसके बाद मैं वापस आ रही थी. IBA में मैंने सोचा था कि MBA करूँगी, मगर मैं छुट्टियों में अब्बा के पास गई हुई थी. तो वहाँ पे एक साहब मिले. उन्होंने कहा आप क्या कर रही हैं आजकल? तो मैंने कहा अभी मैं छुट्टी पे आई हुई हूँ. आई एम गोइंग बैक, आई विल डू माई मास्टर्स फ्रॉम IBA. एंड ही सेड क्या फ़ायदा? तो मैंने कहा लोग करते ही हैं मास्टर्स. ही सेड या बट कोई पर्पस हो तो करते हैं ना आप. मतलब व्हाट इज़ योर एम्बिशन? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ठीक है, ही इज़ राइट, मास्टर्स करके क्या करूँगी जो मैं अंडरग्रेड करके नहीं कर सकती हूँ. तो ही सेड कम एंड सी मी. ही वाज हेडिंग अ शिपिंग कंपनी. उन्होंने कहा आप आके, शौक़ किस चीज़ का है? तो मैंने कहा राइटिंग का बहुत शौक़ है और मैं करती भी रहती हूँ. सो आई वेंट टू सी हिम द नेक्स्ट डे एंड ही सेड ही रैन अ शिपिंग कंपनी विच हैड ऑफिसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और उनके यहाँ ऑफिस में भी 100 लोग काम करते थे, हांगकांग ऑफिस में. तो उन्होंने कहा मैं एक मैगज़ीन शुरू करना चाहता हूँ शिपिंग की, तो वो आप शुरू करें. मैंने कहा आई हैव टोल्ड यू दैट आई नो हाउ टू राइट, मगर मैगज़ीन शुरू करना दैट्स लाइक एंड वेरी एम्बिशियस टास्क. ही सेड यू कैन डू इट. अब वो मुझे जानते भी नहीं थे. मतलब he only knew me as my father's daughter. He only knew me from the conversation that we had had. तो पता नहीं कैसे उनमें ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ. तो he said just join and you know see what you can do. तो मैंने ज्वाइन कर लिया. उसके बाद मुझे शिपिंग के बारे में सीखना पड़ा. 2 चैलेंजेस थे इसमें. मुझे पता है आप चैलेंजेस पूछने वाली हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ आपको. 2 चैलेंजेस थे. एक तो शिपिंग में इट वाज मोस्टली मैन. विमेन जो थी वो क्लरिकल पोजीशंस में, सेक्रेटेरियल पोजीशंस में तो थी. मैनेजरियल लेवल पे औरतें नहीं थी. शिप्स पे जो कैप्टन्स वगैरह थे वो सब मर्द थे. तो आई वॉक्ड इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन वे मैनेजरियल लेवल पे कोई ख़वातीन नहीं थी. तो आई हैड टू बिल्ड अ स्पेस फॉर माई सेल्फ. लोग मीन नहीं थे, बट दे weren't used to seeing a woman in a managerial role. तो मुझे प्रूव करना था अपने को. तो शिपिंग के बारे में भी सीखना था. अगर आप किसी प्रोफेशन के बारे में या उस इंडस्ट्री के लिए मैगजीन निकाल रहे हैं तो उसके बारे में सीखना होगा. एंड आई डिडंट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड. तो वहाँ पे मैगजीन्स पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. लोग जो थे उनसे बातें करनी शुरू कर दी. फिर मैंने लोगों को जो भी आता था, जिनकी शिप्स आती थी पोर्ट में, वहाँ मैं विज़िट करती थी और उन कैप्टन से और स्टाफ से बात करती थी. सो स्लोली आई बिगैन टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री. आई बिगैन टू अंडरस्टैंड कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं शिप्स पे जो टीम्स जाती हैं, तो उनको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. तो इंडस्ट्री समझना थोड़ा बहुत आसान हो गया. देन आई टुक आउट माई फर्स्ट इशू ऑफ द मैगज़ीन. ओके. आफ्टर 3 months. Okay. तो 3 महीने मुझे लगे कि ये सब समझ में. एंड पीपल वर सो एक्साइटेड, इसलिए कि जो जहाज़ उनके थे वो मुख्तलिफ, यू नो, दे वर इन डिफरेंट पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. फिर जो ऑफिसर्स थे तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि हमारे शिप के बारे में लिखा है, हमारी टीम्स के बारे में लिखा है, या ऑफिस में क्या हो रहा है, जो मैनेजरियल स्टाफ है उनको इंटरव्यू किया है इन्होंने.
फिर लोगों ने कंट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दिया। तो एक साहब थे, मुझे याद है, रेडियो ऑफिसर थे ऑन वन ऑफ द शिप्स, ही स्टार्टेड सेंडिंग क्रॉसवर्ड पजल्स रिलेटेड टू शिपिंग। अच्छा। वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर हो ओके। गया। तो इस तरह वो मंथली मैगजीन निकलती गई। आई रैन इट फॉर अबाउट 3.5 years. तो इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई डिडंट थिंक आई कुड डू इट, मगर आई डिडंट लेट दैट होल्ड मी बैक। मैंने कहा कोशिश करते हैं, नहीं होगी तो नहीं होगी। Also, there was somebody who put in that belief in you. Yes, that too. If he hadn't not only put that belief in me but gave me the opportunity. Yeah. नहीं तो normally जब आप कहीं भी जाते हैं फर्स्ट जॉब के लिए, बिकॉज फ्रीलांस राइटिंग के अलावा मैंने कुछ किया नहीं था, फर्स्ट जॉब के लिए जब आप जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ, विच आई थिंक I was extremely fortunate. So how was he like he became fan of your आपका काम, वो सब कहीं देखा था उन्होंने? नहीं, कहीं भी नहीं देखा था, बस कॉन्वर्सेशन मेरे साथ हुआ था। एक रिसेप्शन था तो माय फादर वाज देयर, सो आई हैड अटेंडेड द रिसेप्शन। वहाँ कॉन्वर्सेशन हुआ। Maybe it was something I said or some confidence that I exuded कि उनको ये लगा कि ये कर सकती हैं। Okay. और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और पूछा मेरे बारे में क्या इंटरेस्ट हैं, क्या है। तो he gave me an opportunity that I think most bosses wouldn't. वो एक रिस्क उनके लिए भी तो होता है ना। But he did that and he never regretted it because he saw what what an impact the magazine had and how people were interested in receiving it. घपले हुए बीच में एक बार मैंने एक स्टोरी छाप दी फर्स्ट पेज पे जो मुझे नहीं छापनी चाहिए थी, which was about a fire on one of the ships. और जैसे ही वो पब्लिश हुई, मैंने डिस्ट्रीब्यूट ऑफिस में शुरू की थी, तो भागे हुए आए बॉस और वो कहने लगे कि ये आपने क्या किया है, फौरन जमा करें बिकॉज इंश्योरेंस के वो उस पे वो हो सकती है ना। तो यू कांट राइट अ स्टोरी विदाउट हैविंग, used to even check what you're writing. Nobody would ever check. So he had such faith. Yeah. So I made that mistake, but I corrected it. I collected all the magazines and then I understood कि अगर किसी शिप पे फायर के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस की implications हो सकती हैं। And how old were you at that time? I think I must have been maybe early 20s. तो अच्छा experience था. I learned a lot. Also, when I asked you about the challenges off camera, and she said कि ऐसा कोई challenges थे ही नहीं. तो maybe because you didn't consider वो सब as a challenge. I considered it as learning. आप mistakes करेंगे. असल में मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या जनरल सोसाइटी में, गलती करने से घबराते हैं लोग कि गलती करेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, गलती करेंगे तो पीपल विल थिंक लेस ऑफ यू। दैट्स नॉट ट्रू। विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक, विदाउट challenges, how are you going to learn? So as long as it's not too big a mistake that you cannot correct, let it happen. Failure भी let it happen. कभी कभी failure भी होगा, don't be embarrassed by it. उससे कुछ सीखता ही है इंसान। और यही मैं कोशिश करती हूँ, जितने यंग लोग मुझसे मिलते हैं उनको मैं कहती हूँ don't be afraid. If you're afraid, you're not going to try anything ambitious. ये होता है ना कि अगर आपको डर लगा रहे तो आप रिस्क लेने की तैयारी नहीं होंगे कि ये रिस्क लेना है हमें। हाँ, रिस्क और वो ब्लंडर्स तो बहुत बात की बात है, जो बेसिक गलती है ना उस पर भी लोग इतना डर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा ना हो डांट पड़ जाए, ऐसा ना हो लोग क्रिटिसाइज़ करें, ऐसा ना हो लोग बुरा बोलने लग जाएं, लोग जज करेंगे, तो वो फियर ऑफ जजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सो यू वर स्ट्रॉन्ग हेडेड सिंस लॉन्ग। I wasn't really strong headed, but I think I had confidence. Having this but I always used to think of repercussions. जैसे आप जो कर रहे हैं ना उससे किसी और को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी तो है ना, ये आपको सोचना चाहिए कि मैं ये करने जा रही हूँ, इससे किसी को और को दुख तो नहीं होगा, या किसी के खिलाफ तो नहीं जाएगा ये। मगर हाँ, अगर उस काम का आप समझते हैं कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या उससे कोई कुछ सीखेगा तो आप करें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग इट, बट यस बी श्योर दैट यू आर नॉट हर्टिंग समवन एल्स। So I don't know if that means I'm strong-headed. I don't think I am. Having that confidence in early 20s. The point here is this. अब आप इतना वक्त निकालने के बाद, इतना काम करने के बाद, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग दैट फेथ इन योरसेल्फ, और वो वाला स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस, या कि चलो गलतियां करूंगी पर मैं सीखूंगी, बट हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट इन योर अर्ली 20s। सुने, अभी आप आज देखें 5-6 साल के बच्चों में ये कॉन्फिडेंस अब है जो हम लोगों में नहीं था। अब है ना। तो 20s में होना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। डांट पड़ेगी कोई बात नहीं, सुन लेंगे। नहीं, डांट पड़े तो
सही have चीज़ it. के लिए पढ़े तो ठीक है। वैसे छुपाते भी थे हम लोग, कभी ऐसी गलती करते थे तो माँ बाप से भी छुपाते थे कि डांट ना पड़ जाए, मगर ऐसा कभी कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से माँ बाप इतना नाराज़ हो जाएं या इससे किसी की कोई किसी नुकसान को हो हर्ट किसी का, करें या नुकसान करें। तो इसलिए आई डोंट थिंक वी वर दैट अफ्रेड। बस ये करते थे कि अगर मूवी देखने चले गए और अब्बा कहेंगे होमवर्क नहीं किया है, छोटी छोटी बातें इस तरह की। कोई कोई बड़ा ब्लंडर नहीं मारा कभी? ऐसी चीज़ ये मैगजीन तक ही था? मैगजीन तक ही था। Okay, so but I'll move towards the next a question which is about the mistakes. अब challenges पे तो आप कर ही रही हैं बात throughout your journey. मैं journey पे बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करी because a lot of people have covered those steps of yours, but इसी journey के दौरान काफ़ी सारी गलतियाँ भी की होंगी. You remember any few of those mistakes जिन्होंने आपको बहुत सिखाया? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने ज़्यादा सताया हो। गलतियाँ ज़रूर की होंगी। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो गलतियाँ याद ना रखूँ, उसके लेसन्स सीख लूँ कि ये गलती की है, अब इससे ये सीखा है, बस काफ़ी है। डोंट फोकस ऑन इट, इसलिए फिर इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है। फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। ऐसी कोई गलती की हो जिससे किसी और को नुकसान पहुँचा हो, मेरे ख्याल में कभी नहीं की मैंने। इसलिए हमेशा सोचती हूँ कुछ करने के पहले। और हुई होंगी, छोटी मोटी ज़रूर हुई होंगी, मगर याद नहीं है। ओके, सो आपने ये वाली 2.5-3 साल ये वाला काम किया एंड देन यू मूव टू? सो आई मूव टू दुबई। मेरे वालिद को वहाँ जॉब मिल गया था, तो दुबई अबू धाबी हम लोग 5 साल रहे। तो वहाँ ज़्यादातर तो हमने फ्रीलांसिंग में ही किया, इसलिए कि वहाँ जॉब जो है मिलना इतना आसान नहीं था, वर्क परमिट मिलना इतना आसान नहीं था। तो मैंने इंश्योरेंस भी बेचा 1 साल तक अमेरिकन लाइफ के साथ। राइटिंग की मैंने फ्रीलांस, मार्केटिंग की फ्रीलांस, गल्फ न्यूज़ के लिए काम किया। तो बहुत कुछ किया जिससे सीखा। और वहाँ लाइफ बहुत डिफरेंट थी फ्रॉम हांगकांग, बिकॉज़ वहाँ लड़कियाँ इतने उस ज़माने में नौकरियाँ नहीं करती थी। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैड अ मार्केटिंग जॉब एंड यू वेंट टू वन ऑफ द लोकल्स, तो नॉर्मली वो आपको, कुछ लोग ऐसे होते थे जो बुलाते थे और कहते थे आप 7 बजे के बाद आइएगा, इसलिए कि वहाँ वर्किंग आवर्स 8 to 1 और 4 to 7 थे। 1 to 4 वाज अ ब्रेक, गर्मियों की वजह से। तो मैं कहती थी नहीं, 7 बजे तक मेरे वर्किंग आवर्स है, उसके बाद नहीं आएंगे। तो यू कुड अंडरस्टैंड द माइंड सेट कि लड़की है तो उसको आफ्टर आवर्स बुलाओ। तो मैं कभी ये इस तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। आई थिंक इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग के, और ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर टीचर्स, ऑल्सो कम्स फ्रॉम फ्रेंड्स जो बताते हैं कि देखो इस तरह के रिस्क हो सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन। सो इसका ख्याल मैं बहुत करती थी कि you know, never accept an invitation to go to someone's office after hours, especially if you know you're going to be alone, that kind of thing. तो उससे भी सीखता है इंसान के क्या करना है। तो it was a different kind of environment to the one that I had grown up in. Public transport उस वक्त दुबई अबू धाबी में नहीं होता था, अब तो बहुत मुख्तलिफ है। तो गाड़ी लेनी थी छोटी सी, उसमें जाती आती थी। तो it was, I mean, I enjoyed those days, but very different from my Hong Kong days. So अपनी पहली गाड़ी अपने पैसों से आपने तब ली? जी, बिल्कुल। इसलिए कि हांगकांग में ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि आप बस में जाएं या आप ट्रैम में जाएं या आप चल के जाएं या अंडरग्राउंड रेलवे ले लें, कुछ भी ले लें, बट यू डिडंट नीड अ कार ऑफ योर ओन। अब्बा के पास थी फॉर हिज गेस्ट, इसलिए कि बैंकर थे, मगर हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्कूल जाते थे तो स्कूल बसेस थी, मगर दुबई में ऐसा नहीं था। दुबई अबू धाबी में उस ज़माने में बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो गाड़ी ख़रीदनी पड़ी थी और चलाना भी सीखना पड़ा था। वैसे चलाना सीखना मैंने कराची में सीखा था, वो भी कार डील्स से। और कार डील्स की ऐसी गाड़ियाँ होती थी उस ज़माने में कि दरवाजे दोनों नहीं होते थे। और वो कहते थे गाड़ी चलाएं, और शुरू कर देते थे सदर से। सदर से ही स्टार्ट करनी, तो जिसमें आपका फेयर बिल्कुल फ़ौरन ही ख़त्म हो जाए। ठोकी कितनी ठोकी होगी ना? नहीं ठोकी बिल्कुल। हाँ, उस ज़माने में तो नहीं ठोकी, बाद में थोड़े बहुत जब सीखने के बाद ठोकी। हाँ, अच्छा। इसलिए कि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, किसी ने आके मार दिया या एकदम से रोक लिया सामने, तो
होता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, बस ये कि यू नीड टू ड्राइव केयरफुली एंड यू नीड टू वॉच आउट कि और जो कोई शख्स चला रहा है। अब आजकल तो मोटरसाइकिल से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए ये बहुत सारी हैं कराची में और कहीं से भी आ जाते हैं, तो यू नीड टू बी श्योर कि किसी को नॉक डाउन ना कर दें, आप कुछ ना कर दें। बट आई स्टिल ड्राइव ऑन माई ओन। लोग मुझसे बहुत कहते हैं ड्राइवर रख लो, मैं नहीं रखती, मुझे आई लाइक टू कंट्रोल माई ओन कार। अरे, कंट्रोल माई ओन लाइफ, माई कार एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। So you moved back to Pakistan? No, I moved back to Hong Kong. My father moved back to Hong Kong. He got another job. तो वहाँ मैंने फिर एक मीडिया कंपनी ज्वाइन की। वो represent करते थे foreign publications from all around the world. तो my boss was English. और वो उस ज़माने में जब मैं शिपिंग कंपनी में थी, वो आता था एज अ सेल्समैन और मैं उसको ऐसा गायब करवाती थी कि भाई नहीं, इस वक्त नहीं मिल सकते ये वो। तो उसने कहा कि इफ़ यू हाफ एज गुड एट दिस जॉब एज यू वर एट दैट जॉब, तो आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। तो उसने मुझे जॉब दे दिया। आई लेड डाउन सम रूल्स बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वो अपनी सेक्रेटरी पे बहुत नाराज़ हो रहा था, चीख रहा था। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब की ये बात कि भाई क्यों, कितना मतलब वायलेंटली चीख रहा था। तो जब उसने मुझे बुलाया एंड ही रिकग्नाइज्ड मी, ऑब्वियसली आई डिडंट रिकग्नाइज हिम टू बिगिन विथ, बट ही रिकग्नाइज्ड मी एंड ही सेड ओके यू हैव द जॉब। आई सेड वेट अ मिनट, I need to lay down some rules. He said, you are going to lay down the rules? You are applying for a job? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा अच्छा बताओ। तो मैंने कहा देखें मैं गलतियाँ करूँगी, because this kind of job I've never done before. मैं गलतियाँ करूँगी, आप मुझे बस बता दें कि ये गलत है और इसको इस तरह करना चाहिए। I'll learn. I'm pretty smart. I will learn once I've been told. मगर मेरे ऊपर चीखें नहीं, because my self-respect is very important to me. The day you scream at me, I will walk out without giving you any notice. तो उसने थोड़ी देर तो सोचा, फिर उसने कहा okay, it's a deal. And I worked for him for 9 years. He never screamed at me. Wow. तो ये है कि मतलब I guess he also had to be told कि what you did was wrong. And he heard you. I mean, he listened to the fact that you are making your own rules. And also because I was good for his company. मैंने join किया, मैंने उसको grow किया. He led more or less a retired existence after that. वो घूमता था अपनी girlfriend, Italian girlfriend थी उसकी, उसको लेके वो पूरे region में घूमता था। मैं उसकी business grow कर रही थी throughout the region. I was happy because I was learning. Yeah. He was happy because he was having fun. He was happy because he was having fun and मैं पूरे region में travel करती थी to our offices और बहुत अच्छा मेरे लिए भी था, उसके लिए भी था। The company grew, he was making money, he was spending the money. So it was good for both of us and I think I learned a lot during that time because I met a lot of different kinds of people. I learned how to grow a company from a very small base into a very big base. I learned to work with people from मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हर जगह हमारे ऑफिसेस थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे। तो मुख्तलिफ़ लोगों के कल्चर्स के बारे में भी सीखा, सब कुछ। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जब आप कहती हैं ना चैलेंजेस क्या थे, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी मिली। हाँ, मैंने मेहनत की, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ही मेरा स्किल सेट बेहतर हुआ, मेरी कॉन्फिडेंस भी बेहतर हुई। सो आई थिंक इट वाज ऑल गुड। So, ये आपने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिली, मैंने डिफरेंट कल्चर्स देखे और डिफरेंट लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हाउ यू ग्रू योर सेल्फ एज अ पर्सन? आई मीन पर्सनल ग्रूमिंग भी आपकी हुई होगी एज अ पर्सन, माइंडसेट चेंज होता है बहुत सारे लोगों से मिलके। तो कोई ऐसी स्टोरी आपको याद है या कोई ऐसा बंदा या बंदी आपको याद है जिसने आपका माइंडसेट चेंज किया हो या आपको एज अ पर्सन ग्रो किया हो? नहीं, एनी वन इंस्टेंस तो मुझे नहीं याद है, मगर जैसे आजकल आप देखें हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सिंगल माइंडेड होते हैं कि बस ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि इस तरह हो, इसलिए कि मुख्तलिफ़ ममालिक में अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज़ डिफरेंट, द वे दे फंक्शन इज़ डिफरेंट। तो आपको समझ में आता है, मज़हब भी लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। तो दैट दैट फीलिंग दैट यू कैन
have different religions, different mindsets, different ways of living and thinking, and yet get along and become friends. Yeah. ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में. इसकी वजह से मैं बहुत ग्रो हुई कि मैंने देखा कि लोग जो है ना उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं. अच्छा, मैं जब जाती थी तो लोग पूछते थे कि खाने पे ले जाते थे तो उनको ख्याल होता था कि ये मुसलमान हैं तो इनको हम बता दें कि फ़लाँ चीज़ में पॉक है, इसको आप मत खाएं. या ड्रिंक्स, उनको पता था ड्रिंक नहीं करती हैं तो वो बता देते थे. जैसे मुझे नहीं पता था कि इसमें अल्कोहल है. हाँ, जैसे एक ड्रिंक है स्क्रू ड्राइवर के नाम से जो ऑरेंज जूस लगता है बिल्कुल, मगर उसमें वोडका होता है. तो मुझे तो नहीं मालूम था. तो आई वेंट टू अ रिसेप्शन एंड वन ऑफ द गाइज, आई वाज गोइंग टू ड्रिंक आउट ऑफ द ग्लास, ही केम एंड ही सेड, जहान डोंट ड्रिंक दिस. तो मैंने कहा व्हाई नॉट. फौरन ये सवाल हुआ कि क्यों मुझे पीने नहीं दे रहा. उसने कहा दिस इज नॉट ऑरेंज जूस, दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर व्हिच हैज वोडका इन इट. तो लोगों को भी ख्याल होता है कि अगर आपकी कोई बिलीफ है तो they try and respect that also. They try and respect that. They try and assist you where they can. तो इससे मुझे लर्निंग बहुत हुई कि लोग हर मुल्क में बुरे नहीं होते, हर मुल्क में अच्छे नहीं होते. You need to develop relationships and you need to prove to them that you are there to listen and also to learn, and they should also listen and learn from you about your culture, about your beliefs, and also how you can work together. So since we're talking about your travel experiences, I generally ask this question at the end, but any travel experience that literally moved you? Yeah, मतलब of course you're talking about these things, but कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मुल्क, कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसा culture that taught you or moved you? You know, every country that you go to, you learn something from the people that you meet. ऐसी कोई मुझे एक सिंगल इंसिडेंट तो नहीं समझ में आ रहा, मगर जैसे आप जाएं, अब यूएस में मैं जाती हूँ, आप उसमें गरीब एरियाज़ में भी जाते हैं और जो वेल डेवलप्ड एरियाज़ हैं उसमें भी जाते हैं, मगर आप देखते हैं लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. और स्ट्रगल करके भी वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं. तो उससे आपको एक रिस्पेक्ट होती है उन लोगों के लिए कि बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं जो हम सोचते नहीं हैं कि दूसरे, यू नो, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स ड्रिंक, वेदर इट्स जस्ट अ प्लेस टू लिव, उसके लिए लोगों को स्ट्रगल करना होता है. तो यू फील वेरी फॉर्चुनेट कि ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हम हैं, हमारे, यू नो, वी नॉट रिच, but I've always had a place that I can call home. I've always had enough to eat, चाहे वो दाल चावल ही हो, मगर खाने को तो मिलता है और अच्छा लगता है, right? और whether you've had an education, बहुत से लोगों को education का मौका नहीं मिलता है. तो I've had all that, and you've had love of your family and your friends. ये सबके पास नहीं होता है. तो जब मैं देखती हूँ मुख्तलिफ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ें के लिए उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ी है, तो इट मूव्स मी दैट लिसन, आई एम सो ब्लेस्ड. ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उन लोगों को देखें. मुझे याद है एक बार मेरे वालिद के साथ मैं हांगकांग में, वी यूज्ड टू वॉक टू द बस स्टॉप वेयर आई यूज्ड टू कैच द स्कूल बस. तो हम जा रहे थे तो कुछ बच्चे जा रहे थे गाड़ी में अपनी, तो मैंने अपने अब्बा से पूछा, आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक 6 or 7 years old. So I asked my father, I said, how come we don't have a car? Why are we walking down and these people are going in such a nice car? So at that time he turned around to me and he said, beta, don't look at people who have more than you. Always look at those who have less than you. Yes. And that stuck with me. मतलब उस वक्त शायद इतना कुछ नहीं वो हुआ होगा, but it must have impacted me because after that I've always thought, I'm blessed. I have so much. And I'm not rich. तो अभी भी कुछ साल पहले एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आप जो वक्त पे हर जगह पहुंच जाती हैं, why do you think it's such a great thing? आप तो अपनी गाड़ी में आती हैं और मैं तो बस लेके आता हूँ या मैं कैब लेके आता हूँ, तो इसलिए मैं देर में. मैंने कहा सुनो, I didn't always have a car, okay? When I used to go to college, I used to change 3 buses to get to college. और उस ज़माने में आप सेंट जोसेफ जाने में आप सोचें वो बस में जो ख़वातीन का सेक्शन होता है ना, वो इंजन के करीब होता है. और फिर आपके पास अगर बैग हो तो वो औरतें आपको पुश कर रही होती हैं और बुरा भला भी कह रही होती हैं. सो इट्स नॉट दैट यू आर बॉर्न विद इट, यू वर्क टुवर्ड्स इट. मैंने बहुत मेहनत की टू नाउ हैव अ कार दैट आई हैव पेड फॉर.
तो डोंट Even assume. people who have car also come late, यार ऐसा मसला नहीं है. नहीं, वो लेट होने की बात नहीं थी. It's all about वो your- assumption होता है कि आप हमेशा से अमीर रही होंगी या आपके पास पैसे आसानी से आ गए होंगे. Don't. I mean, some people, yes, some people are born rich, but they have different kinds of struggles. Maybe they are unhappy. Maybe they don't have friends. Maybe they don't have family that loves them. तो हर किसी के लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो स्ट्रगल कर रहा होता है. Don't. It should not make you feel better that someone else is miserable. And should not make you feel miserable कि किसी और के पास कोई चीज़ है. I think it's all about balancing that. Amazing. So tell me, what annoys you the most? I think people who lie. झूठ बोलने का मेरा कभी भी मुझे नहीं समझ में आया. भाई, be strong. Say कि ये मुझसे गलती हो गई है. And maybe मैं आपसे नाराज़ होंगी 2 मिनट के लिए. Take it and then move on. झूठ बोलने से ये होता है कि एक झूठ बोलने के बाद आपको दूसरा झूठ बोलना होता है, फिर तीसरा झूठ उसको कवर करने के लिए बोलना होता है. तो I don't like people who lie because you never know where you stand with them. And you send the wrong image, so and then people do not annoys trust me a you lot. again. ये वाली और फिर स्थिति. लोग जो लेट होते हैं उनसे भी मुझे बहुत अनॉयंस होती है, इसलिए कि मुझे बचपन से आदत है टाइम पे होने. तो इसलिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, कोई इवेंट लेट शुरू हुआ तो मुझे अनॉयंस हो रही होती है और मैं अपने को होल्ड बैक करती हूँ कि यार take it easy. I was on time. Okay. You were well ahead of time, so I'm very impressed. Thank you. So you moved back to Pakistan. You did this. So you worked at Pasha. I joined. Actually, I joined a company with a couple of friends, and I started a multimedia company in the early 90s. और उस वक्त मैंने पाशा ज्वाइन किया because I thought कि multimedia company it has something to do with tech. So let me join the association that represents tech. तो मैंने ज्वाइन किया. उस वक्त भी सब मर्द थे वहाँ पे. और वो छोटी सी इंडस्ट्री थी उस वक्त. उनको हमेशा यही होता था कि अगर हमने ये करवाया तो इसका बेनिफिट हो जाएगा, आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा. तो मैं हमेशा ये कहती थी कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? Why don't you do something to benefit the entire industry instead of always arguing about these things. So मैंने फिर वो पाशा देखा कि it's an association that represents the industry. I joined it. वहाँ पे लोग आपस में आर्ग्यू करते थे. मुझे लगता था बहुत कुछ कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं. That was my impatience. I'm sure they did a lot of stuff. And they were very important people. They were people who had achieved a lot. मेरी तरह नहीं, मैंने तो अभी छोटी कंपनी शुरू की थी. मगर मैं anyway I would say कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. So after a few years, when at that time the chairman left, so a group of Pasha representatives came to me and said, आप तो हर वक्त यही complain करती हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तो why don't you take over as president of the association and make the changes that you think should be made. वाह. तो अब मैं मुझे समझ में नहीं आया कि how I could say no since I was always complaining. So I took over that job and I started doing things. And इत्तेफाक से उसी वक्त उस ज़माने में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था और she had been sick for many years. So I had put in a lot of time taking care of her and doing my work and all of that. तो मुझे एक गैप लगा अपनी लाइफ में that I had to fulfill. मुझे याद बहुत आती थी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी के साथ. तो पाशा का ये जॉब लेके मैंने 18-19 hour days काम करना शुरू कर दिया. Just to, it was like the devil was after me and I had to run and do. तो वो करने में मैंने बहुत सी चीज़ें की जो शायद a normal person इतना वक्त ना लगाए किसी चीज़ में. वो मैंने करना शुरू किया and it started to show results. And when it started to show results, people were happy, naturally. Members के साथ काम करना, youngsters के साथ काम करना, नए initiatives शुरू करना. So I started the Pasha ICT Awards, which now I think they're in their 15th or 16th year now. MashaAllah. And I started, events where people could interview talent and employ people. उस तरह की चीज़ें. फिर स्टार्टअप्स के लिए हमने शुरू किया कि वो लोग आके पिच करें, उनकी हम पिचेस सुन के उनको एडवाइस दें, इस तरह की चीज़ें. So there was lots of things that I did at that time that maybe I wouldn't have done if I wasn't that crazy.
मगर मज़ा भी आ रहा था. आई वुड ओनली डू थिंग्स दैट आई एंजॉयड. और बहुत से लोग, पता है, व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग दैट पीपल बिलीव इज़ नीडेड, तो बहुत से लोग मदद करने भी आ जाते हैं. तो आवर इंडस्ट्री इज़ अ वेरी नाइस इंडस्ट्री, लॉट ऑफ वेरी हेल्पफुल पीपल. कुछ नेसेयर्स होंगे मगर कम होते हैं. ज़्यादातर लोग, इफ़ दे थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, दे विल ट्राई एंड हेल्प यू. तो बहुत से लोग आए, उन्होंने मदद किया, दे गॉट इन्वॉल्व, पीपल पुट इन मनी, people put in time. So I don't know where time flew. I think psychologist ने सही बोला था, you're too positive. ये देखिए, इसका बैकग्राउंड आपने किसी को नहीं बताया. तो नहीं, वो समझती थी कि मैं आई एम टू पॉजिटिव, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी इफ आई एम टू पॉजिटिव. नहीं, आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन आई वाज अपसेट एट पीपल, एंड ऐसे हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम किसी चीज़ पे अनॉय भी होते हैं, अपसेट भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, हर्ट भी होते हैं, मगर मेरे ख्याल में उस पर फोकस करना. So that time जब आप your mother died and आपने ज़्यादा काम करना शुरू किया, did that affect your mental health somewhere? I'm sure it did somewhere along, but I didn't. I mean, ठीक है, आप बिजी रहने के लिए काम ज़्यादा कर रहे हैं, but also at times आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है. ऐसा तो नहीं हुआ. You know, I tried not to let it affect my interaction with people. Because I used to be so tired at the end of the day that I would just go home and collapse. और काम करने में मैंने बहुत वक्त लगा. I knew what was going on. It wasn't as if it was a reaction and I didn't know what was going on. I knew कि अम्मी की वजह से मुझे लग रहा है. My father was still very active, so he was going out. He was always a very active person. So he would go out, meet with his friends, his family, all of that, his brothers, his sister. His nephews, nieces. मैं काम में लग जाती थी. तो उसमें मुझे पता था कि this is what I'm doing. I'm filling a gap. But slowly, you know, the pain subsides. You don't miss the person any less, but you feel you can now handle it. तो उसमें चिड़चिड़ी तो नहीं होती थी, but yeah, it helped me. I think the work I did helped me to cope. और ऐसा होता है मुख्तलिफ चीज़. You know, some people travel and that allows them to cope. Some people have friends around them. I had very good friends. I have friends that I have known since my high school days who are still my friends. Wow. तो 5-6 ऐसे दोस्त हैं मेरे जो have been around through good times, through bad times, and they were there. तो ऐसा नहीं है कि I was alone and I had my siblings जो यहाँ नहीं थे पाकिस्तान में, but I knew they were there. They came for Ammi's funeral. They were in constant touch. So that also helped. But my work was the crazy work that kept me totally occupied. And you enjoyed your work? I enjoyed it thoroughly. And then this happened? Katalyst Labs? No, then the Nest IO happened. Yeah. So at Pasha, some of us decided that IT companies come here Pakistan mein, and we need more. But the only way that was going to happen was if more young people started their own companies, जो हो नहीं रहा था इतना. मेरे ख्याल में या तो उनको मालूम नहीं था कि अगर कोई आइडिया है हमारे दिमाग में उसको कैसे टर्न करें इनटू अ बिजनेस. सम ऑफ देम डिडंट नो कि अगर हमें टेक्सटाइल या इंश्योरेंस के एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट इज़ द इंश्योरेंस बिजनेस लाइक, तो वहाँ से मेंटोर्स कैसे मिलें. तो हम लोगों ने ये तय किया कि वी नीड टू स्टार्ट a place where young people can come for advice, where they can hang out, और वो अपने जैसे और जो entrepreneurs हैं उनसे भी सीखेंगे, हमसे भी सीखेंगे, हम mentors को लाएंगे, उनसे मिलवाएंगे. We'll help them develop their business models. We'll help by having events and having people come in who have started businesses, उनके बारे में वो सुनेंगे. तो that was very early. अब तो बहुत से incubation centers भी खुल गए हैं, बहुत सी जगह अब ये सब कुछ हो रहा है. उस ज़माने में नहीं हो रहा था. तो हमने फिर जब शुरू किया, मैंने पाशा में जो बोर्ड था उनसे मैंने ये डिस्कस किया कि हम ये करते हैं. गूगल से मैंने डिस्कस किया बिकॉज टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट you need money, you need a space, you need to, you know, have money in order to hire people and all of that. So how did you get a chance to connect with Google? So there was a team from Google who was visiting Islamabad. और पाशा से तो being an IT association वो connect करते हैं. तो जो यहाँ थे उस वक्त गूगल के रिप्रेजेंटेटिव बदर खुशनूद, उन्होंने मुझे मिलवाया. जो खातून थी उसकी हेड जो थी मेरी ग्रोव, she was heading a division called Google for Entrepreneurs.
तो उनका काम ही यही था कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में इनिशिएटिव्स को बैक करते थे, जिसकी वजह से और एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस हों। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा अच्छा व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। सो आई टोल्ड हर कि भाई इसलिए कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स इतने नए नहीं बन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इनकरेज करें, हम चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करें। तो देन शी आस्क्ड व्हाई कराची, बिकॉज मैंने कहा कराची में करेंगे। तो शी सेड व्हाई कराची। आई सेड बिकॉज लाहौर इस्लामाबाद में फिर भी नस्ट में कुछ हो रहा था, लम्ब सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप खुल गया था, कराची में कोई कुछ नहीं कर रहा था उस ज़माने में। तो मैंने कहा एंड इट्स द बिगेस्ट सिटी इन द कंट्री विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल, सो आई थिंक वी कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट देयर एंड देन वी कैन ऑल्सो वर्क विद यंगस्टर्स इन अदर सिटीज़। मगर प्राइमरीली जगह जो बनाएंगे वो मैं चाहती हूँ कि कराची में बने। सो शी सेड अच्छा एक प्रपोजल बना के भेज दें। तो उसने कहा कितने पैसे चाहिए, और ये यंगस्टर्स को याद रखना चाहिए, जब कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए तो यू बेटर हैव वर्कड इट आउट के कितने पैसे। हमें नहीं पता था, आई डिडंट नो एनीवन वुड एग्री टू गिव मी मनी। सो जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन किए, रेंट इतना लगेगा, लोग हायर करें अगर 6-7 हायर किए तो इतना लगेगा, बिजली का बिल कितना लगेगा, तो एक्स नंबर उनको दे दिया कि इतनी की ज़रूरत होगी। उसने कहा ठीक है मैं आपको इसका आधा दे दूँगी, और वो भी जब दूंगी जब आप the 50% that remains you're able to raise from someone else. चलो Because we want you to have this space and call it your own. We don't want it to be a Google space. We want it to be your space. Okay. Supported by Google. Okay. तो ownership आपकी होनी चाहिए। तो फिर हमने सोचा आप कहाँ से मिलें, तो मुख्तलिफ लोगों के पास गए, लोकल इंडस्ट्री में बहुत जगह गए हम लोग। Okay. Knocked on a lot of doors. A lot of our friends helped us by introducing us to people and all. किसी को समझ भी नहीं आता कि entrepreneurs बनाने में क्या फ़ायदा होगा। You know, हमारे यहाँ अभी भी the biggest business people think कि या the richest individuals think कि अगर real estate में invest कर दें तो उससे जो फ़ायदा होगा, nobody could understand कि entrepreneurs में young people में invest करने से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर हम गए पहुँचे सैमसंग के पास, अनदर फॉरेन कंपनी राइट। उनसे हमने कहा कि हम ये कर रहे हैं, गूगल ने, उनको भी समझ में नहीं आया था वैसे बाय द वे, मगर उनको ये समझ में आया था कि गूगल अगर कर रहा है तो कोई फ़ायदा है इसमें। तो उन्होंने हमें बैलेंस वो पैसे दे दिए। सो देन वी हैड द मनी to set up the space. Then we got a call from the US State Department कि आप गूगल के साथ कुछ करने, हम भी आपको पैसे दे सकते हैं। तो फिर then we had the money to do what we wanted to do. Yeah. So it was fun. It was interesting. It was also challenging because हमने कभी किया नहीं था ये। तो finding out, learning from youngsters what they needed and making sure we provided it. It was a great journey. 6-7 साल ये किया तो So learnings from this and Pasha also. फिर मैंने ये खोला Katalyst Labs. This was only about 2.5 years ago. और इसका पर्पस सिंगुलर है। अब तो NICs बहुत से हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो हमने ये सोचा कि अब इंक्यूबेशन फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है एक्सेलरेटर की। जिन्होंने कंपनी शुरू कर ली हैं, जिनकी थोड़ी अर्ली रेवेन्यू है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट है, अब उनकी मदद करने की ज़रूरत है। हाउ टू चेंज देयर बिजनेस मॉडल, हाउ टू ग्रो देयर कंपनीज, कनेक्टिंग देम विथ इन्वेस्टर्स, ये सब करने की ज़रूरत है। So tell us a bit detail about like how are you helping them? So what we do is we introduce them. First we look at their products, have a one-on-one session with them, find out what it is they want to do, and then help them improve that business model. And then help them if they need to raise money, help them to figure out कि pitch क्या करना है आपको, investor क्या सुनना चाहता है, सही है, and then connect them with the right people. और जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है उनको हम कह देते हैं कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, पहले ये चीज़ें आप फिक्स करें। तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो नेस्ट आयो से थी और जो कैटलिस्ट लैब्स की है वो काफ़ी बड़ी हो गई। दूसरा प्रोग्राम जो हमारा है वो I'm really very passionate about, and that is to grow more women business leaders. Amazing. जब मैं देखती हूँ ना मुल्क में, तो आप अगर सीनियर पोजीशंस में देखें, CEO लेवल, बोर्ड लेवल पे बहुत कम ख़वातीन हैं। और क्यों? We have so many talented women in this country. Why is it they never reach the top? So मुझे ये समझ में आया कि मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, घर पे, फैमिली में
हर जगह उनसे ये कहा जाता है कि नॉट ऑल, आई मीन आई डोंट वांट टू जनरलाइज, कुछ लोग बहुत सपोर्टिव होते होंगे, फैमिलीज भी, टीचर्स भी, मगर उनका रोल ऐसा लगता है कि मिड मैनेजमेंट लेवल तक है, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं है। तो वो कोशिश नहीं करती हैं कि सेल्फ हम, कॉन्फिडेंस भी वही, कॉन्फिडेंस भी कम होता है, मे बी कैपेसिटी भी थोड़ा कम होता हो। बिजनेस नेटवर्क खवातीन का नहीं होता है। If you see men go and play golf, they meet otherwise outside. Women normally go home and then have to deal with the house and the family and the parents and children or whoever else. तो उनका business network नहीं बन पाता है। तो the purpose at Katalyst Labs is to help them build their capacity, help them build their confidence, and also introduce them to a business network. तो हमारे cohorts जो हैं वो 30 खवातीन अगर हर cohort में होती हैं, तो एक तो ये network उनका बन गया 30 का। सही है। और फिर अब हम चौथे कोहोर्ट में हैं, दैट नेटवर्क इज इंक्रीजिंग। सेकेंडली वी इंट्रोड्यूस देम टू वुमेन लीडर्स जो खुद उन चैलेंजेस के थ्रू गई हुई हों, हाउ दे grew to the positions that they had grown. What are the challenges that they face? Some of the questions that you asked me are questions we asked Musharraf Hai or Maheen Rahman or other women, Naz Khan, who is now in, she's now in an investment capacity, IMF नहीं, क्या है, IFC में, sorry. तो IFC में she is heading the principal, she's the principal consultant for IFC. वो के इलेक्ट्रिक में भी थी, उससे पहले उन्होंने और काम किया। तो ऐसी खवातीन से मिलवाकर आप उनको से मिलवा के उन्होंने बताया कि हमने किस तरह अपने को डेवलप किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं जिन्होंने बिफोर एनी ऑफ अस, she worked at the Asian Development Bank, at the World Bank, then she became governor of the State Bank. सीमा कामिल हैं जो अभी भी डेप्यूटी गवर्नर। Such women we introduced to them. उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की, उन्होंने सवाल के जवाब दिए, they were so honest. And then we also brought in some men who are leaders and they talked about their journey. कोई ज़रूरी नहीं है कि challenges सिर्फ ख़वातीन फेस करती हैं, मर्द भी फेस करते हैं। आमिर पराचा of Unilever, he talked about his journey. तो इनको कनेक्ट करना ऐसे लोगों से जो जिनसे वो सीखें भी और फिर वो नेटवर्क में उनका इंक्रीज हो जाता है। Also they can tell about their side of the coin, like for example why we don't have women entrepreneurs or women leadership or female CEOs, let's say. Why? Like there must be some reasons, and they can share their side of the coin also with these people so that they can work on their selves and improve and fill those gaps. Absolutely. और फिर ऐसी चीज़ सीखना, जैसे आमिर पराचा ने कहा कि who I am today is because of 2 women leaders at Unilever. Okay. Musharraf Hai and Shazia Sayyed, who used to head Unilever. He said they taught me everything I know. तो वो सुन के इन खवातीन पे जो असर पड़ा ना कि look, this man who is heading one of the largest organizations in this country is saying that he is who he is because of the women he worked with. It's huge. It's awesome. And for a man to admit that, it takes a confident man to admit to that as well. So I have a lot of respect for Amir because you're doing an amazing job. And he's doing an amazing job. You're doing an amazing job. I'm doing an amazing job. Okay. So Tamgha-e-Imtiaz. Oh, This happened. This happened. And what was the story? I mean, how did you feel? How did you come to know about it? The story. So I did not expect it. I didn't even know what a Tamgha-e-Imtiaz is, to be honest. Because जो लोग काम करते हैं ना, वो काम इसलिए करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उससे किसको फ़ायदा होता है, उससे खुशी क्या होती है. So I never expected it. But to be recognized and for the President's office to contact you and say that the President is bestowing upon you a Tamgha-e-Imtiaz for your service to the IT industry over this many years, it was like huge. Because you feel touched that somebody would have thought of doing that. The recognition may not be something you sought, but it certainly makes you feel good. और मुझसे ज़्यादा मेरी जो कम्युनिटी ऑफ यंगस्टर्स है ना, वो तो इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उन्हीं को मिला है. और कितनी अच्छी बात है ना, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत, मैं कह रही हूँ ना, अवार्ड से ज़्यादा ये होता है कि लोग आपके लिए खुश हो रहे हों, लोग जेन्युइनली आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हों. उनमें से 2 उस वक्त इस्लामाबाद में थे
जब मैं लेके वहाँ से आ रही थी, and they insisted कि आप जहाज पे पहने रहें. मैंने कहा पागल. They made me wear it on the plane from Islamabad to Karachi, and they kept telling everyone, you know, she got a Tamgha-e-Imtiaz. It was so embarrassing, I can't tell you. But ये है कि I knew that they're doing it because they are actually happy. So yeah, the Tamgha-e-Imtiaz meant a lot, yes, because recognition always means something. But more than that, the celebration amongst my community meant a lot more. कि इनको देखो कितनी खुशी हो रही है. And my family, of course, my brothers and my sister all. And I missed my parents, because for my father it would have meant something really huge. He was always proud of his children and of what they accomplished. So when the moment you received it, what was your like feeling? You were numb or what? Yeah, I mean, it was overwhelming. Because they were very, some really awesome people who were getting the Tamgha at President House that day. And for Dr. Arif Alvi to hand it to you and say, congratulations, it was like, I felt really amazed. Amazing. And overwhelmed. And meeting Obama, the moment. I want to know that story too. Actually, that's a misconception. I didn't actually meet Obama. Okay. So I got a letter from the White House saying that you are invited to the Global Entrepreneurship Summit to speak at an event, and it was signed by President Obama. Okay. You think he's there to meet all the speakers? I mean, सब लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया था just to say. Global Entrepreneurship Summit है तो. हाँ. तो वहाँ I think he was the keynote speaker. So I was one of many people he must have seen, but I'm sure it never registered in his mind कि ये हैं Jehan Ara, इनसे मुझे मिलना है. So, but it was still amazing that I was invited by him to come and speak at the Global Entrepreneurship Summit. It's huge. It was huge for Pakistan and it was huge for me. So I still, and I remember we went to celebrate. So we went to Sindhi Muslim and we were moving around in a car and getting barbecue and all of that. And there was a car full of young children who were going past, and they got out, they lowered the window, got out and said, aren't you Jehan Ara? We read about you in the newspaper. You got, you went to see Obama. So सबके दिमाग में ये था कि she went to see Obama, but actually I didn't. I went to the Global Entrepreneurship Summit, and yes, Obama was there, as were many other people, and it was. But it was still, nice. reaching to that point was. Yeah, it was. It was nice, and it was. I had the opportunity to speak about Pakistan, about the young people of this country, about how they should invest in entrepreneurs in Pakistan. I think that kind of opportunity is amazing. And you never thought of, sitting in those rooms and, representing Pakistan internationally. And today you... At Stanford. Yeah, I mean, it was a dream come true. Like, those are places you hear about. Those are things you watch on television. You don't think you're going to be a part of it. And today you're indifferent about having a lot of attention. No, I wasn't indifferent. I enjoyed it, but that was not the most important part. The important part was meeting the people I did, was also having the opportunity to speak about the young people of this country and how talented they are. उससे मुझे ज़्यादा खुशी होती है, उससे मुझे high होता है. So wherever I go, wherever I travel, that's what I do. I talk about not myself, because that's only a small part. The bigger part is our entrepreneurship ecosystem, what young people in this country are capable of doing, what they are actually doing, and why people should invest in this country. Ye mera, that's what gives me a high. Amazing. And this was one misconception you talked about. I want to know some other misconceptions people have about you. I don't Just know. say I had a misconception that you might be very rude. Regarding? Like you might be very rude. Yeah. This was the misconception. But mostly, have you felt it कि यार लोगों के ज़हनों में ये misconception है मेरे बारे में या मेरी personality के बारे में? हाँ, लोग डरते हैं मुझसे मिलने के पहले. और कुछ को मैं डराती भी हूँ. खासतौर पे गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनको डराने में मजा आता है, बिकॉज लोग मुझसे डरते हैं इसलिए कि मैं अगर कोई मुझे क्वेश्चन होता है तो मैं ट्विटर पे डाल देती हूँ, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आई पुट इट ऑन ट्विटर. वो फ़ोन करके कहते हैं कि आप तो हमें जानती हैं, आप क्यों नहीं फ़ोन करती. मैंने कहा बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट नॉट ओनली
I am facing, it is a problem being faced by lots of people. तो जब आप जवाब देंगे तो वो सबको पता चलेगा and it will solve their problem at the same time. मगर मज़ा बहुत आता है. I guess it's naughty of me. Enjoying that Twitter power of yours. Yeah, I think it's fun. As long as I'm not causing any harm. I'm just getting them to do what they're supposed to be doing anyway. The problems are also solved. Yeah, exactly. Because you have that power. People hear you, listen to you, read your tweets. That eventually a lot of you other form a community online as well. लोग कहते हैं कि Facebook हम नहीं use करते या Twitter हम नहीं use करते. I have a community on Facebook and Twitter whom I've never met in person. कभी कभी फिर इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती है तो कहते हैं हम तो आपको बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं अब मुलाकात हुई है. And then that's fun too. I met some people this time when I went to Toronto who I had never met before, but who had been following me on Twitter all these years. So then we sat down and we had a chat and we got to know each other, and it's so much fun. So you had a lot of fun throughout the journey while working, and you are, mashallah, very successful. You're sitting in big rooms, you're representing Pakistan and everything. But can we talk about your personal life right now? I thought we had. I talked about my mother, about my family. What so are do you? You get questions like about marriage? Yeah. So sometimes people do ask, कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो I don't understand a question like that. First of all, people should not ask such personal questions. Secondly, the thing is, मैंने कोई consciously ये नहीं decide किया है कि मुझे शादी नहीं करनी है. It just never happened. I never found a person that I wanted to get married to, and my parents did not push me that तुम 22-23 साल की हो या 25 साल की हो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए. Why is there an age? अभी क्या पता, maybe next year I might meet someone that I want to get married to. आप वेस्ट में नहीं सुनते हैं 90-year-old है, 95-year-old है, शादी के लिए. So I have not decided not to get married, but I have not decided that if I don't get married, my life stops. ये गलतफहमी जो होती है ना, कि अगर हमारी शादी 25, 26, 27 साल में नहीं हुई तो इसका मतलब है there's something wrong with me. There's nothing wrong with you. You're a human being. You have other things to do in life. पढ़ना भी है, काम भी करना है, दोस्तियाँ भी करनी है, ट्रैवल भी करना है, गैजेट्स भी खरीदने, ये सब कुछ मैंने किया है. शादी नहीं की because I just never connected with a person that I felt कि मैं ज़िंदगी भर उसके साथ गुजार सकती हूँ. I have lots of friends who are happily married. I have some friends who are divorced. I have some friends who decided not to get married. Everybody in their own lives are either happy or miserable because of circumstances. तो मेरे ख्याल में ये assume करना कि आपने शादी इसलिए नहीं की कि आप समझती थी कि आप जॉब में ग्रो नहीं कर पाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. There I have a friend who got married, has 3 children and has grown in her career. ऐसा नहीं होता है. You need to decide what is important to you. और शादी होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी. लोग कहते हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं तो don't you feel deprived? नहीं. My friends have children, my brother has children. I enjoy that part of my life by playing with them, giving them gifts, spoiling them, और फिर उसके बाद घर भेज देती हूँ उनको कि आप जाएं, अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ. तो ऐसी कोई बात नहीं है. But people start sympathizing, you know. I know, but I think that's foolish of them. Yeah. Because don't they see I'm happy? I enjoy every bit of my life. तो हो सकता है if I got married, I would enjoy my life even more. Who knows? But why sympathize over something that is you don't know about, right? हो सकता है मेरी शादी होती तो मैं miserable होती, ये भी हो सकता था. But you know, So what kind of partner you expected? So I wanted someone who was compassionate, who was kind, who thought of other people more than just himself. ऐसे बहुत से लोग होंगे. मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि ऐसे किसी से मेरी मुलाकात हुई हो जिसको मुझ में भी इंटरेस्ट हो और मुझे उसमें इंटरेस्ट हो. नहीं हुआ. And also you need to make sure that the partner is someone that you can get on with intellectually. I'm not a great intellectual. I love to read, I love to watch movies, I love to travel. तो इंटरेस्ट भी सिमिलर होनी चाहिए ना. ये नहीं कि आपने शादी कर ली, वो अलग लाइफ लीड कर रहे हैं, आप अलग लाइफ लीड कर रही हैं. तो ये मेरे ख्याल में ये सब कुछ चीज़ें थी, मगर नहीं, कॉन्शियस डिसीजन ये नहीं था. इट जस्ट नेवर हैपेंड एंड आई एम हैप्पी. होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा.
मेरे ख्याल में it's a bit late now. It's But never anyway, too late. nobody needs to sympathize because I am Of course, very happy as of a course, person. of I have course. friends, I have family, I have a community. Everybody loves me. Some people don't, A lot but of it's people okay. want to be at the place you are, want to be like you, and the work you're doing, kind of places you're going, and kind of people you're meeting. So people want to be like you. So People should never want to be like anyone else. They should want to be like want to themselves. do the kind of work you do. Yeah. If they want to do the aspire work to the that kind of work. yeah, then they should. They should put in the effort, and they will develop. They will get those opportunities. And if they want to travel, they should travel. You learn so much through travel. For me, I know that I need a certain amount of money. ठीक है, लोगों के लिए, some people think success is about how much money you earn. I pay myself very little compared to what people in my position are paid because this is my company. I don't think I can afford to pay myself anything more. मगर जो पैसे मुझे मिलते हैं, that's enough. What do I need money for? I need a place to live. I need food to eat. I need to buy myself a nice Macintosh laptop. I need my iPhone. And I need to travel a little. Yeah. All that I have. उससे ज़्यादा पैसे, और I need a car, which I have. So उससे ज़्यादा मैं क्या करूँगी पैसों से? लोग ये नहीं सोचते कि अगर आपको अभी 5 लाख मिल रहे हैं या 2 लाख मिल रहे हैं, तो आपको अगर 8 लाख मिलेंगे या 2 मिलियन मिलेंगे या 10 मिलियन मिलेंगे, तो क्या करेंगे आप उसके साथ? More of the same, really. मिल जाए तो अच्छा है, आप चैरिटी में दें. आप जैसे आई डू गिव टू चैरिटी. फ्लड्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया है. हर आदमी करता है, जितना कुछ कर सकता है वो. And that's a good thing to do. मगर to aspire just to make money is, in my opinion, I don't know. It's not something I would do. हर आदमी मुख्तलिफ होता है, तो if people want money, I guess. So tell me, what ignites the same fire in you even today, or what inspires you every day? I think the people I meet, the young people who have done so much, people who have created an impact, that inspires me. I think any person I meet and I talk to and they have accomplished something, that inspires me, especially young people. And I want to do something that I can to make their lives easier and to ensure that there are many more people like them in this country. I think technology and young people are two things that can make a difference to this country. And we have both. Why aren't we creating the opportunities that they need in order to make this country even greater than it is today? We have problems. We have economic problems. We have societal problems. All those can be taken care of if we just give them time, if we give them the opportunity, and if we help them become what they want to become. Because all of them are ambitious. All of them want to accomplish something in life. I know there are many people who reach out to me. और लोग ये कहेंगे, आपका मेरा इंटरव्यू देखने के बाद वो कहेंगे, ये तो कह रही है मगर हम उनको लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे मैसेज करते हैं तो वो जवाब नहीं देती हैं या मिलती नहीं हैं. Listen, I am one person. I can only meet fixed number of people. I try. और अगर मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, लोग मिलते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने लोगों से बात कर सकूँ करूँ. But reach out to people all around you. People are willing to help. People are willing to talk to you. People that you can learn from. एक के पीछे ना लग जाएं. जो भी मिले आप उससे कुछ सीखें. And maybe it's people your own age. Maybe it's people who've accomplished something in life by becoming entrepreneurs. Maybe there are people who are, social space में कितना काम किया है. अभी मतलब whether it's TCF, whether it's what Shehzad Roy is doing, whether it's the Indus Hospital, there are so many people amongst us who have done such amazing things to make a difference to this country. मिले उनसे, और वो लोग बहुत ही humble लोग हैं, मिलते भी हैं सबसे. तो I think, what I want to see is young people develop and change this country. That's what drives me these days. Amazing. Anything I can do to make a difference, I'm trying to do, but I think they're the ones who want to change this country. I'm very happy interviewing you, and I really, really enjoyed the interview. But while closing the interview, I would like to ask, do you have some
Do you want to throw some tips I want to say, or maybe the best advice you have received up till now that you want to repeat? So the best advice I received was from my parents, who said, do whatever you think you can do or that you are passionate about, but remember you have to work hard to accomplish it. Don't think it will fall in your lap. Amazing. And that's good advice. Amazing, amazing. Thank you so much, ma'am. Thank you for being with us. Thank you very much. It was great. I had fun. Hello, this is Jehan Ara. Do subscribe to Hustle so that you can listen to interviews from many inspiring people.